Hello students, let's discuss Lorentz force. What is Lorentz force? Lorentz बल क्या है? If a charged particle moves at a place where both the electric field and magnetic field are present, then the force acting upon the charged particle is called लॉरेंज फोर्स। जब कोई आवेशित कण ऐसे स्थान पर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं तो आवेशित कण पर कार्य करने वाला बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल Lorentz force is a resultant force of electric force and magnetic force। लॉरेंज फोर्स वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के द्वारा एवं चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो आरोपित किया जाता उसका परिणामी बल होता है। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया गया है। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉजिटिव चार्ज acts in the direction of the electric field, and the magnetic force on the positive charge which is moving along an angle theta with the direction of the magnetic field QV cross V means चुंबकीय क्षेत्र V के कारण आवेश प्लस Q पर जो चुंबकीय बल कार्य करता है उसका मान QV क्रॉस V है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धनावेशित या आवेशित कण की वेग की दिशा दोनों के लंबवत है। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड as well as the direction of the motion of the charged particle. Its direction is determined by the Fleming's left-hand rule or right-hand palm rule number 2 or the right-hand thumb rule for the vector product. चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अथवा दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 के द्वारा अथवा राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 फॉर वेक्टर प्रोडक्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस तरह के जो डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के रूल्स हैं, इन सारे लॉज को ऑलरेडी हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉरेंज फोर्स इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्टेंट है। तो सपोज इलेक्ट्रिक फोर्स
due to electric field वैद्युत क्षेत्र के द्वारा वैद्युत बल Fe equals Q times vector E, equation 1, and magnetic force due to magnetic field चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर and magnetic field vector. If here angle is given in which the charged particle is moving with the direction of the electric field, that is theta, therefore it will be Fm equals QVV sin theta. This is equation number 2. Now from equation number 1 and 2 we can determine the resultant electric force. Resultant electric force परिणामी बल, resultant force परिणामी बल F equals electric force due to electric field and magnetic force due to magnetic field equals Fe QE plus Fm, that is QBV sin theta, equals, take Q common, E plus VV sin theta or Q vector E plus vector V cross vector B, this one. Now if at any place only magnetic field is present, then force will be only due to magnetic field and that will be called magnetic force. This is the magnetic force. Here only magnetic field is present. Now when the charged particle moves in the magnetic field, then a force acts upon the charged particle and this force is called the magnetic force. And the direction of the magnetic force, really very important. Direction of the magnetic field, direction of the magnetic force, direction of the magnetic force, चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा, मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज perpendicular to both the direction of the magnetic field and also the direction of the motion of the charged particle. This one. चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं आवेशित कण के गति की दिशा दोनों के लंबवत होती है. This is the direction of the magnetic field, which is along the direction of x, and charged particle is moving along an angle theta with the direction of the magnetic field. Now its vertical component will be v sin theta along y. This is b and this is v sin theta, and this is the force F. Therefore force F will be Q V cross V equals Q V sin theta. Pay attention, magnetic force
fully dependent on the theta q for particular charge particle is constant, velocity v is also constant here, magnetic field magnitude is also constant, but theta is here playing very important role. थीटा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है। अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं देन F विल बी 0, तो चुंबकीय बल का मान भी 0 होगा अगर कोण 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करने पर आवेशित कण पर कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। इसके आधार पर कभी कभी लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिफाइन करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा होती है जिस दिशा में आवेशित कण पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दैट डायरेक्शन along which no magnetic force acts upon the moving charged particle। तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। और यदि थीटा की वैल्यू 90 है तो F इक्वल्स क्यू बी बी साइन 90, दिस विल बी मैक्सिमम फोर्स, F विल बी मैक्सिमम फोर्स, अधिकतम बल कार्य करेगा। इस प्रकार देख रहे हैं यदि थीटा का मान 0 है अर्थात आवेशित कण का वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो वहाँ पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल 0 होगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से आवेशित कण के वेग की दिशा 90 डिग्री पर है तो उस समय अधिकतम बल कार्य करता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट को देखते हैं, यहाँ से क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए इस समय मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में है, तो यानी थीटा की वैल्यू 0 है। जब थीटा की वैल्यू 0 है, देखिए ये यहाँ पर फोर्स 0 है दिशा। अब देखिए मैक्सिमम फोर्स, इसमें फोर्स 0 मैक्सिमम हो गया, 90 डिग्री का कोण वेलोसिटी और v के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री कोण होने पर मैक्सिमम फोर्स। और जिस समय थीटा की वैल्यू यानी दोनों एक दिशा में है उस समय थीटा की वैल्यू 0 होती तो उस समय फोर्स का मान 0 होता है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल की दिशा को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग फिर से डिस्कशन कर लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर इस ऊपर वाले 4 हैंड यानी इस थंब को हम फादर, फिर इसको मदर और इसको चाइल्ड का नाम दें। तो फादर का जो पहला लेटर है दैट स्टैंड्स फॉर द फोर्स और मदर का पहला लेटर M फॉर मैग्नेटिक फील्ड यानी V एंड चाइल्ड का जो पहला लेटर है C फॉर करंट। यानी यदि हम लेफ्ट हैंड के यानी बाएं हाथ के अंगूठा एवं उसके समीप की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर लंबवत रहें, तो अगर ये मध्य वाली उंगली यानी मिडिल फिंगर यदि धारा की दिशा को व्यक्त करती है और ये पॉइंटर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है तो थंब यानी अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। एक और है दूसरा, यह है राइट हैंड पाम रूल नंबर। राइट हैंड पाम रूल नंबर ये है, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को रखें फैला करके और ये जो अंगूठा है इसको धनात्मक आवेश की दिशा में गतिमान होने पर अर्थात धारा की दिशा में, और अगर आवेश ऋणात्मक है तो उसके विपरीत दिशा में रखने पर, तो दाहिने हाथ की हथेली पर
खींचा गया लंब की दिशा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।